आई विल रिवाइज व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमारे 12th में खाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, वो नहीं है. ठीक है. So elasticity of the demand is responsiveness of, right, it is responsiveness of a quantity demanded of a commodity with respect to, right, changes in the price of the commodity, that is price elasticity. With respect to change in the income of the individual is the income elasticity, and with respect to change in the prices of related goods is a cross elasticity. तीन इलास्टिसिटी फाउंडेशन में, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी है. ठीक है. 12th में तीन इलास्टिसिटी है. जब बोलते हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, इफ क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ द डिमांड इलास्टिसिटी, तो तीन टाइप्स है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. एंड जब बोलते टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, पांच टाइप्स है. इज इक्वल टू जीरो, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनफाइनाइट, perfectly elastic, is equal to 1, unitary elastic, greater than 1, relatively elastic, less than 1, relatively inelastic. ये प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स है. एग्जाम में हम उस अलग फ्लो में होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ अलग चालू रहता है एंड वी कमिट द मिस्टेक. 8 मार्क का क्वेश्चन रहता है. ठीक है. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5. ठीक है. सो हमने देखा था, राइट, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी, इट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू change in the price of the commodity. The formula is percentage change in the quantity demanded of commodity X divided by percentage change in the price of X. ठीक है. That is, I can also denote it is change in the quantity demanded divided by change in the price multiplied by old price upon old quantity. ठीक है. Then income elasticity is responsiveness of quantity demanded of a commodity with respect to change in the income of the individual, percentage change in the quantity demanded divided by percentage change in the income. 12th में they won't be asking you numerical questions. ठीक है. जो फाउंडेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं 12th में नहीं, 12th में खाली थ्योरी कंसेप्ट, थ्योरी है. ठीक है. देन क्रॉस इलास्टिसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू, राइट, चेंजेस इन प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक है. देन हमने देखा था, राइट, when a small change in the price, when small change in the price brings more than that change in the quantity demanded. So quantity demanded is a responsive with respect to price. प्राइस थोड़ी सी चेंज हो रही है, डिमांड ज्यादा से चेंज हो रही है, हम उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक. when larger change in the price brings smaller than that change in the quantity demanded, quantity demanded change हो रही है but not to that extent, it, right, वो less extent से change हो रही है as compared to change in the price, हम बोलेंगे relatively inelastic है. when a given change in the price, when a given percentage change in the price brings equal percentage change in the quantity demanded, the answer will be 1, unitary elastic. एक था when any change in the price, price increase करो, price decrease करो, does not change the quantity demanded, brings no change in the quantity demanded, change in the quantity demanded is 0, and therefore answer is also 0, right, perfectly inelastic. You get, right, vertical demand curve parallel to y-axis. And when very small change in the price brings infinite change in the quantity demanded, very small change in the price brings infinite change in the quantity demanded, perfectly elastic, you get a horizontal line parallel to x-axis, and the answer is infinite. ठीक है. और हमने उसके ये डायग्राम्स देखे थे. ठीक है. These were the diagrams. ये डायग्राम्स थे, right, vertical line parallel to y-axis, right, price axis is perfectly inelastic, horizontal line parallel to x-axis, अगर ऐसे डिमांड करे तो परफेक्टली इलास्टिक है. देन अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, जितनी ज्यादा फ्लैटर होगी उतनी वो इलास्टिक रहती है, जितनी वो स्टीपर रहेगी उतनी वो इनइलास्टिक होती है. ठीक है. ये हमने देखे थे 5 टाइप्स. देन देखो हमने अभी तक क्या देखा,
हमने देखा मीनिंग, हमें क्या क्या सीखना था, मैंने यहाँ पे लिखा था मीनिंग, यस, टाइप्स, प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स। नाउ हमें समझना है मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। सिंपल मेथड से 3 मेथड से सिलेबस में, ठीक है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी लिख लेना। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। मेथड वन, मेथड वन लिख लेना, परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड और प्रोपोर्शनल मेथड। इट इज परसेंटेज मेथड और रेशियो मेथड और प्रोपोर्शनेट रेश क्या बोलते हो, प्रोपोर्शन में, परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड एंड, राइट, अच्छा ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, रेशियो मेथड। Method. Then, under this method, try to understand price elasticity is calculated as percentage change in the quantity demanded of a commodity. Always remember, whenever we take the change, it has to be percentage change. We never take absolute change. We go right for the percentage change. So percentage change in the quantity demanded with respect to divided by percentage change in the price of the commodity. So percentage method और रेशियो मेथड इज अ डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, राइट। इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है यही वो मेथड है, ठीक है। इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, राइट, change in the quantity demanded, that change is a percentage change with respect to change in the price, that change is a percentage change. So we are taking the ratio of change in the quantity divided by change in the price, and those change are not absolute change, they are percentage change, ठीक है। where percentage change in the quantity demanded of commodity X is equal to new quantity demanded of a commodity X आफ्टर चेंज, चेंज होने के बाद जो डिमांड है वो, प्राइस चेंज होने के बाद जो डिमांड है वो, ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एक्स, प्राइस चेंज होने के पहले जो डिमांड थी वो, डिवाइडेड बाय, राइट। इन रेशियो मेथड यू ऑलवेज टेक बेस एज ए ओल्ड थिंग। अब क्या परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ढूंढ रहे हो, सो इट इज ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल पहले डिमांड 100 थी, now the demand has increased to 150. So you will say percentage change 150 minus 100, 50 से चेंज हुआ है, divided by with respect to old 100 multiply by 100. So you will say 50 divided by 100 multiply by 100. You will say 50% से डिमांड इंक्रीज हुई है। आप क्या बोलोगे, 50% से डिमांड इंक्रीज हुई है। पहले डिमांड 100 थी, अब डिमांड 150 है, तो मैं बोल रहा हूँ कितने परसेंट से डिमांड इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। आप बोलोगे 100 से 150 हुई है, सो एब्सोल्यूट चेंज इज 50, absolute change is 50 divided by base. What is the base? Old. 50 divided by 100 old quantity, because 100 से 150 हुई है, so base is 100, so 50 divided by 100 multiply by percentage चाहिए इसलिए 100, 50%, so you will say demand has increased by 50%. So how to find out percentage change in the quantity demanded? New quantity minus old quantity divided by old quantity multiply by 100. How to find out percentage change in the price of the commodity X? Same formula is same. New price of commodity X
minus old price of commodity X divided by old price of commodity X multiplied by 100. Suppose when the price was 10 rupees, quantity remained as 100. When the price decreases to 8 rupees, quantity demanded increase to 150. So I have to find out percentage change in the price. Price has decreased 10 से 8 हुई है, has decreased by 2. Absolute change is 2. So how will you find percentage change? 2 with respect to 10 है. 2 with respect to 10. New price minus old price divided by base, take old price, multiply by 100. So you'll say minus 2, price has decreased by 2 with respect to old price 10, multiply by 100. So it is 20%. Price has decreased by 20%. Price has decreased by 20%. And now you know with 20% change in the price, 50% change in the demand. A small change in the price. So if you find out it is 50% divided by 20%. The answer is 2.5. Answer is greater than 1. Answer is greater than 1. Answer is greater than 1. So I can say 20% change in the price brings 50% change in the demand. आपने प्राइस 20% से चेंज कर दी, डिमांड 50% से चेंज हो गया. मींस स्मॉल चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स लार्जर चेंज इन द डिमांड. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. व्हेन स्मॉल चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स लार्जर चेंज इन द डिमांड. ठीक है. सो ये रिलेटिवली इलास्टिक होगा. सो ये है आपका राइट मेथड. दिस इज रेशियो मेथड. Ratio method is right the method in which we use the ratio, we use the proportionate, percentage change in the quantity demand divided by percentage change in the price. मॉड्यूल में देखते हैं क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में. लेट मी ओपन द टेक्स्ट बुक. एक सेकंड. अच्छा, ऑल नोट्स में होगा. हाँ. ध्यान देना. रेशियो मेथड, व्हाट इज गिवन इन द रेशियो मेथड, ध्यान देना. ठीक है. रेशियो मेथड इज डिस्कवर्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. According to this method, elasticity of the demand is measured by dividing the percentage change in the demand by percentage change in the price. Percentage method is also known as arithmetic method, ratio method or arithmetic method. Right? Price elasticity is measured as percentage change in the quantity demanded divided by percentage change in the price. ये formula है. Mathematically, the above formula can also be written as, if you solve this formula, let me show you. If you solve this formula, चलो हम इसको solve करके देखते हैं. Now what is percentage change in the quantity demanded? Is change, absolute change in the quantity demanded, new minus old divided by old quantity demanded, multiply by 100. This is percentage change. हम इसको change in the quantity demanded बोल सकते हैं, बराबर. एंड इसको न्यू माइनस ओल्ड प्राइस इज चेंज इन द प्राइस बोल सकते हैं, बराबर. सो हमें क्या फॉर्मूला चाहिए? परसेंटेज चेंज इन द डिमांड. इट इज चेंज इन द quantity demanded divided by change in the divided by old demand multiplied by 100 divided by change percentage change in the price, which is change in the price divided by old price multiplied by 100.
100 100 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा ओल्ड प्राइस अपॉन राइट चेंज इन द प्राइस. If you reshuffle them, change in the quantity demanded divided by change in the price multiply by old price upon old quantity. This is another formula. This is another formula. ठीक है, और वही फॉर्मूला उन्होंने यहां पे लिखा है. ये फॉर्मूला उन्होंने वो लिखा है. चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, change in the quantity demanded divided by change in the price multiply by old price divided by old quantity. ठीक है, then this is the first method. Which method? Percentage method. ठीक है, next also known as arithmetic method, also known as arithmetic method. Next आगे the second method is the expenditure method, method 2 outlay method, और फाउंडेशन में उसको रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं. मेथड 2 टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड, टोटल आउटले और टोटल रेवेन्यू मेथड. फॉर योर इंफॉर्मेशन इसको रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज किसी का एक्सपेंडिचर किसी का रेवेन्यू होता है. टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मेथड. ध्यान देना अब मैं क्या बोल रहा हूं. दिस इज सेकंड मेथड. इन दिस मेथड वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड एक्सपेंडिचर. So if ध्यान देना, price of the commodity, expenditure of a consumer on the commodity, expenditure on X, X is a commodity. ठीक है, then what is the elasticity? ध्यान देना, बहुत सिंपल चीज है. If the price of the commodity increases, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस. मतलब प्राइस इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस. एग्जाम्पल द प्राइस इज 10 rupees per unit, you are buying 100 rupees per unit, you are buying 10 units, your expenditure is 1000. Price increases to suppose 110, you buy 10 units, expenditure increase to 1100. प्राइस इंक्रीज होने पे एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है. You are not decreasing the demand, it means the goods are necessity and elasticity is less than 1. कब ऐसे पॉसिबल है कि प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो? मतलब डिमांड शुड नॉट डिक्रीज, या अगर डिमांड डिक्रीज होगी इट शुड नॉट डिक्रीज बाय परसेंटेज मोर देन इंक्रीज इन द प्राइस. प्राइस जितनी से इंक्रीज हुए उससे कम से डिमांड डिक्रीज होगी तो योर एक्सपेंडिचर ओवरऑल इंक्रीज होगा. मैथमेटिक्स से कब एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा? व्हेन डिमांड विल रिमेन सेम, या अगर डिमांड डिक्रीज भी होगी, अगर डिमांड डिक्रीज भी होगी तो भी ट्राई टू अंडरस्टैंड वो ये जितने से राइट प्राइस इंक्रीज हुई है, प्राइस 10% से इंक्रीज हुई है, डिमांड शुड डिक्रीज बाय लेस देन 10%. डिमांड शुड डिक्रीज बाय लेस देन 10%, तो ही जाके वो आंसर रहेगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मींस कंज्यूमर्स आर नॉट गिविंग अप ऑन ए कमोडिटी. भले उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है फिर भी लोग वो परचेस कर रहे हैं. मतलब वो नेसेसिटी है लोगों के लिए. वो क्या है? नेसेसिटी. वो है नेसेसिटी, राइट? कमोडिटी टाइप, राइट? नेसेसिटी.
प्राइस डिक्रीजेस, वही एग्जांपल लेता हूं, व्हेन प्राइस वाज 100, quantity demanded was 10 and 1000 was the expenditure. This was expenditure. Price decreases to 90, still he buys 10 units, still he buys 10 units, the expenditure reduces to 900. देखो ये नेसेसिटी है, you have to consume 10 units, आपको उतने कंज्यूम करने ही करने हैं, प्राइस कितनी भी हो, you will go and you will buy that much because it is necessity. Without that you cannot survive. Try to understand. मतलब प्राइस इंक्रीज भी हो तो भी आप 10 यूनिट कंज्यूम करो, एग्जांपल, एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज. प्राइस डिक्रीज हो तो भी आप 10 ही यूनिट कंज्यूम करो, आप डिक्रीज नहीं कर रहे हो, एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज. सो डिक्रीज इन द प्राइस डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर. द इलास्टिसिटी is less than one necessity. So when there is a direct relation, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, when there is a direct relation between the price and the expenditure, प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, या प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंज्यूमर इज नॉट गिविंग अप द कमोडिटी. वो उतना ही बाय कर रहा है जितना पहले कर रहा था, या मे बी उसने डिमांड कम की होगी बट ज्यादा से कम नहीं की होगी, बहुत स्लाइटली कम की होगी उसने, एज कंपेयर टू चेंज इन द प्राइस, डिमांड उससे कम से चेंज हुई होगी. ठीक है, नेसेसिटी. दिस इज फर्स्ट. नेक्स्ट, सेकंड रिलेशन, प्राइस इंक्रीजेस, एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस. Price increases, expenditure decreases. Like example, ध्यान देना, price is 10 rupees, या price is 100 rupees, you are spending 10 right, you are demanding 10 units, you are spending total 1000 rupees. Price increases to 110, demand decreases to 8. Price is increased by 10%, demand has decreased by 20%. 10% change in the price brings 20% change in the demand. क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, आप ऐसे भी देख सकते हो, 10% change in the price brings 20% change in the demand. Demand is relatively elastic. You can see your expenditure is 880. With increase in the price, expenditure has decreased. Means प्राइस थोड़ी क्या इंक्रीज हो गई, कंज्यूमर्स हैव स्टार्टेड गिविंग अप द कमोडिटी, वो राइट, वो कम बाय कर रहे हैं, एंड दे आर डिक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर. द इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन, रिलेटिवली इलास्टिक, इट इज लग्जरी. वही अगर प्राइस डिक्रीज होगी, कंज्यूमर्स विल इंक्रीज द एक्सपेंडिचर. लाइक अब यहां पे देखो, जब प्राइस 110 थी, कंज्यूमर वर परचेसिंग 8 यूनिट्स, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था उनका 880. व्हेन द प्राइस वाज 110, देयर द डिमांड फॉर 8 यूनिट, द टोटल एक्सपेंडिचर वाज 880. व्हेन द प्राइस डिक्रीज टू 100, प्राइस जब 100 पे आ गई, डिक्रीज इन द प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, expenditure also increased. Decrease in the price, increase the expenditure. डिस्काउंट मिलने पे लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, मींस इट इज लग्जरी. सो व्हेन देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द एक्सपेंडिचर, बहुत सिंपल चीज बोल रहा हूं ध्यान देना, whenever there is an inverse relation between the price and the expenditure, answer is greater than one, relatively elastic. ठीक है, लग्जरी. And sometimes increase in the price or decrease in the price does not change expenditure. No change in the expenditure. मतलब example, when the price is 100, there is a demand for 10 units, 1000. Price decreases to example 50.
demand increases to 20, still expenditure is 1000. Try to understand the change is, right? जब प्राइस डिक्रीज हुई 50 पे, एक्सपेंडिचर फिर भी सेम ही है. जब प्राइस इंक्रीज हुई 50 से 100, एक्सपेंडिचर फिर भी सेम ही है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? एक्सपेंडिचर इज सेम. When the price changes, expenditure is the same, area is the same. मतलब if I draw the demand curve, yeah, right? Suppose this is 1, price is 100, right? Demand is 50. Price is 100, demand is 50. नहीं, हाँ, price is 100, demand is 10. This area is a total expenditure. This area is a total expenditure, which is 1000. प्राइस 50 हो गई, प्राइस 50 हो गई, प्राइस 50 हो गई, राइट? डिमांड 20 हो गई. नाउ दिस इज अनदर एक्सपेंडिचर एरिया. दिस इज अनदर एक्सपेंडिचर एरिया. दिस इज ऑल्सो 1000. ये भी 1000 ही है. मतलब कैन आई से ये ऐसी कर्व है, ये ऐसी कर्व है जहां पे इस पॉइंट पे जो एरिया है वही इसी पॉइंट पे है, वही इसी पॉइंट पे रहेगा, वही इसी पॉइंट पे रहेगा, वही इसी पॉइंट पे रहेगा. एरिया अंडर ईच पॉइंट इज द सेम. एरिया इज सेम, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ऐसी कर जहां पे एरिया सेम रहता है उस कर को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो कैन आई से दिस इज, राइट, equal to 1. Unitary elasticity. This is relatively elastic, relatively inelastic, relatively inelastic. This is relatively elastic. And the last is unitary elastic. Unitary elastic. Actually, this should not be straight line. Actually, ये ऐसे कर्व होनी चाहिए. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होनी चाहिए. ठीक है, आगे. It should not be a straight line. Next. So ये है परसेंटेज मेथड. क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं फिर से बोल रहा हूं. व्हेन परसेंटेज मेथड के बाद एक्सपेंडिचर मेथड देख रहे हैं. एक्सपेंडिचर मेथड में इट टॉक्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन द प्राइस and the expenditure. क्या बोला मैंने? It talks about the relation between the price and the expenditure. If the relation is a positive, means price increases, expenditure also increases. या price decreases, expenditure also decreases. It is relatively inelastic. Necessities less than 1. When the relation is a inverse. Inverse मतलब क्या? उल्टा. मतलब when increase in the price decreases expenditure, decrease in the price increases expenditure, it is relatively elastic. You cannot exactly tell the amount, you exactly cannot tell the elasticity. आप exact नहीं बोल सकते, इतना ही होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. So आप ऐसे बोल नहीं सकते कि exactly कितना आंसर रहेगा, बट एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो, राइट? आप exactly बोल सकते हो कि लाइक आप ये नहीं बोल सकते कि ग्रेटर देन 1 मतलब 1.2, 1.5, 1.7, 2.5. ऐसे एग्जैक्टली इस मेथड में आंसर नहीं बोल सकते, बट आप कैटेगरी बोल सकते हो कि वो रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, या इज इक्वल टू 1 वाला है. आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बोल सकते. एग्जैक्ट आंसर के लिए आपके पास परसेंटेज मेथड है, या आपके पास एक राइट आपके पास क्या बोलते उसको, ज्योमेट्रिक मेथड है, पॉइंट मेथड है. बट अगर यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेगा. बेसिकली मेथड कब यूज की जाती है? व्हेन दे हैव गिवन यू प्राइस एंड द एक्सपेंडिचर.
व्हेन दे आर गिवन यू प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, तब हम इस मेथड को देख के, राइट, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप देख के हम बोल सकते हैं वो गुड्स कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है. एंड व्हेन देयर इज नो मतलब व्हेन प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो, एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज. एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज. अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम उसको यूनिटरी इलास्टिसिटी बोलते हैं. यूनिटरी इलास्टिसिटी के कोई गुड्स के टाइप्स नहीं होते, मैं बोल भी नहीं सकता कुछ, ठीक है, उसके कोई एग्जांपल नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट रियलिस्टिक थिंग. आगे, सो दैट इज द थिंग. सो ये आगे आपकी सेकंड मेथड. चलो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है देखते हैं. टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है. दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय अगेन अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड. अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है देखा जाएगा. प्राइस चेंज हो रही है तो एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो देखा जाएगा. हेंस टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू, राइट, टू द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन of price and the quantity demanded. What is expenditure? Price multiplied by quantity demanded. In connection, in this connection, Alfred Marshall has given the following propositions. Relatively elastic. When a given change in the price of a commodity, right, to total outlay increases, elasticity of demand is greater than 1. ये गलत लिखा है, ये बहुत गलत लिखा है. आई डोंट नो, दिस इज करेक्ट. क्या लिखा है देखो. when price falls or increase when price falls or rises, total outlay मतलब expenditure does not change or remains constant, elasticity of demand is equal to 1. ये परफेक्ट है. यहाँ पे क्या लिखा है ठीक से पढ़ने दो. when a given change in the price of a commodity, total outlay increases, and यहाँ पे total outlay, ये 100% रॉन्ग है. यहाँ पे लिख लेना एवरीवन, आपके टेक्स्ट बुक में चेंज करो, रिलेटिव इलास्टिक में लिखो when the relation between when change in the price, ऐसे लिखो या यहाँ पे when a change in the price, when the change in the price results in opposite change in the expenditure, that is when the relation between price and expenditure is opposite, inverse, it is relatively elastic greater than 1. ठीक है, ये किसके नीचे लिखना है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. वो गलत लिखा है उन्होंने, ठीक है, उतना कॉमन सेंस होना चाहिए. दिस इज रॉन्ग. देन वैसे नीचे लिख देना, लास्ट ईयर तक करेक्ट था, लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में परफेक्ट था. when the change in the price results in same change in expenditure, that is when the relation between price and expenditure is positive, elasticity is less than 1. ये लिख लेना.
ये डेफिनेशंस को कट कर देना, दीज आर रॉन्ग डेफिनेशंस, ठीक है। उन्होंने कैसे लिखा है, व्हेन ए गिवन चेंज इन द प्राइस, व्हेन ए गिवन चेंज इन द प्राइस, राइट, द टोटल आउटले इंक्रीजेस। अरे ऐसे नहीं, प्राइस इंक्रीज होगी आउटले डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होती है आउटले इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं ग्रेटर देन वन। तो ये डेफिनेशन रॉन्ग है। नेक्स्ट, ठीक है। देखो यहां पे आप देख सकते हो, जब प्राइस 10 से 20 हो गई, जब प्राइस 10 से 20 हो गई, एक्सपेंडिचर 60 से 100 हो गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, प्राइस भी इंक्रीज, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज। आंसर इज प्राइस इंक्रीज, एक्सपेंडिचर इंक्रीज, आंसर इज लेस देन वन। इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। उल्टा कर दो उधर, उल्टा, जब प्राइस डिक्रीज हो गई 20 से 10 हो गई, जब प्राइस 20 से 10 हो गई, एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो गया, इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। नेक्स्ट, यहां पे देखो, जब प्राइस 30 से 40 हो गई, एक्सपेंडिचर 120 का 120 है, जब प्राइस 40 से 30 हो गई, एक्सपेंडिचर सेम ही है, एक्सपेंडिचर सेम ही है, इज इक्वल टू 1, परफेक्ट। जब प्राइस 50 से 60 हो गई, डिक्रीज इंक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, या प्राइस डिक्रीज हो गई 50 से 60, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, ग्रेटर देन वन। चेंज करो, मॉडल टेक्स्ट बुक में गलती है, करो चेंज। ये तो ये पैराग्राफ डिलीट करना है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, एंड यहां पर उन्होंने गलत दिए साइंस, ठीक है। आगे, and all this explanation is wrong. एक्सेप्ट बीच वाला, बी का यूनिटरी इलास्टिक है ना, ये वाला रॉन्ग दिया है उन्होंने, ये वाला उन्होंने रॉन्ग दिया है, दिस इज करेक्ट बिकॉज ये यूनिटरी इलास्टिसिटी का। चेंज करो आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। नहीं, डोंट राइट गिवन डे, ये गलत डेफिनेशन है, डोंट राइट एनीथिंग रॉन्ग, डोंट राइट एनीथिंग रॉन्ग इन द, बिकॉज जो सिखाने वाला टीचर है ना, वो पुराना टीचर है, वो जो पेपर चेक करने वाले 10 साल के टीचर रहेंगे, तो दे नो द करेक्ट डेफिनेशन, डोंट वरी, यहां पे गलत है, ठीक है। खाली गलत नहीं लिखना है कभी भी, यू कैन राइट, एक नोट लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन रॉन्ग है, ये लिख सकते हो नीचे, द डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज रॉन्ग, ऐसे लिख सकते हो, दैट विल आल्सो क्रिएट गुड इंप्रेशन कि एक्चुअली बच्चे को पता है क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है, ठीक है। आई कैन शो यू, मैंने फाउंडेशन में लिया था ना, बराबर, ये सप्लाई के है, बराबर यही था, देखो, when change in the price has an inverse relation with the change with the expenditure, answer is greater than one, luxury. When change in the price has a positive relation with the expenditure, less than one, necessities. And when price increases or decreases, expenditure remains constant, answer is unitary elastic, ठीक है। उसके पीछे मैंने लॉजिक भी दिखाया था, ये वाला लॉजिक था, इन फाउंडेशन, वो सब फाउंडेशन में सब चीजें आती है, 12th में उसका इतना समझना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने बोला था एक्सपेंडिचर का एरिया दिखाया था, एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे भी देखते हो, अब कोई चीजें समझाना खाली 12th लेवल पे मुश्किल हो जाता है, ये कर्व फ्लैटर है, फ्लैटर कर्व ग्रेटर देन वन होता है, बराबर, तो दिस इज ओरिजिनल प्राइस, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी, दिस इज वन एरिया, ये एक एरिया होगा,
This will be one area. Now, a small change in the price, almost 5% change in the price, and this is new quantity demanded. Almost 15% change in the demand. And now this is your new this is your new expenditure. A small change in the price brings larger change in the quantity demanded. Answer is 15% divided by 5%. Answer is greater than 1. 3. 3. Answer is 3. तो ये relatively elastic demand है. Relative elastic demand में you can find out this area is less than this area. मतलब जब price decrease हो गई, area increase हो गया, expenditure increase हो गया. जब प्राइस डिक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, मतलब कर्व फ्लैटर होनी चाहिए. मतलब आंसर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. ठीक है. सो द डेफिनेशंस गिवन देयर आर रॉन्ग. नेक्स्ट आगे. नेक्स्ट. सो दिस इज पॉइंट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. देन कम्स पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड ध्यान देना. The last method is a point method or geometric method. Third method. Point or geometric method. पहले, if demand curve is a straight line, if demand curve, फाउंडेशन में खाली समझ के लेना है, बट उसमें एमसीक्यूज होते हैं. 12th में तो हर चीज लिखना होगा. अप्रोच टोटली अलग रहता है फाउंडेशन 12th का. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नेक्स्ट ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. इफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या रहेगा. दिस इज योर डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. सबसे पहले करना क्या है ध्यान देना. ठीक है. दिस इज योर डिमांड कर्व. सबसे पहले उसको एक्सटेंड करो. एक मिनट, थोड़ा मुझे उसको छोटा करने दो, मतलब आपको ठीक से लिखा सकता हूं. आपको ये प्रोसेस एग्जाम में लिखनी है, ये भी समझ लेना. आपको ये प्रोसेस एग्जाम में लिखनी है. लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली. फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, आपको क्या लिखना है ध्यान देना. एक्सटेंड इट so that it will intersect x axis as well as y axis. So क्या लिखना है स्टार्टिंग में. extend the demand curve so that it will intersect x axis as well as y axis. ठीक है. जनरली डिमांड कर्व नेवर टचेस x axis y axis बिकॉज डिमांड जीरो नहीं हो सकती और प्राइस भी जीरो नहीं हो सकती. अगर आप वो x axis को कट कर रही है, अगर x axis को कट कर रही है यहां पे, तो इसका मतलब डिमांड जीरो है. सॉरी, ये प्राइस एक्सिस है, ये प्राइस एक्सिस है, ये डिमांड एक्सिस है. बराबर. मतलब प्राइस जीरो है. अगर एक एक्सिस को कट करेगी तो प्राइस जीरो है. ऐसे कभी नहीं होगा कि कोई कमोडिटी जीरो में मिल रही है. ₹1 तो प्राइस रहेगी उसकी. सो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकती. एंड यहां पे राइट वाई एक्सिस को भी कट नहीं कर सकती बिकॉज वहां पे डिमांड जीरो रहेगी. सो डिमांड कर नेवर टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बट हम उसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे सो दैट इट विल टच बोथ द एक्सिस. एंड देन we can find out elasticity at any point on a demand curve. Suppose I have to find out elasticity at this point. ठीक है. How will I find out? Try to understand. जो भी point, ध्यान देना मैंने क्या किया. First step, extend the demand curve so that it will meet both the axis, x axis as y axis. ठीक है. Then you can find out elasticity at any point on a demand curve because अगर आपको इस पॉइंट पे ढूंढना है, सपोज यू हैव टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए. दिस इज पॉइंट ए.
The point A will divide the demand curve into two segments. The segment is, suppose this, BC is a demand curve. BC is a demand curve. Point A divides the BC into two segments, AB and AC. Given point on a demand curve will divide the demand curve into two segments. Lower segment AB, upper segment AC. And then you have to find out the length of lower segment AB and upper segment AC. And you have to use the formula length of upper segment upon, length of lower segment upon length of upper segment. You have to use the formula length of lower segment upon length of upper segment. Suppose this is example, BC is 4 centimeters. BC is 4 centimeters and A is a midpoint. A is midpoint of BC. That is AB is equal to AC is equal to 2 centimeters each. Barabar? 2 centimeters each. So lower segment, elasticity at point A, ध्यान देना, elasticity at point A, lower segment AB divided by upper segment AC. 2 centimeter divided by 2 centimeter is equal to 1. Elasticity at this point is 1. Elasticity at this point is 1. ध्यान देना, ठीक है? You have to find out the elasticity, right, at suppose this point D. लिखता हूं यहां पे, ध्यान देना, D is midpoint of, D is midpoint, ठीक है? D is midpoint of AB. D is midpoint of AB. AB का midpoint है. That is, can I say, right, DB is equal to DA is equal to 1 centimeter each. मतलब ये 1 centimeter है. This is 1 centimeter. This is total 2 centimeter. 4 centimeter हो गया? Yes. ठीक है? You have to find out elasticity at point D. How will you find out elasticity at point D? D point on a demand curve CB. D point on demand curve पूरी है CB. Divides the CB demand curve into two segments. Lower segment DB, upper segment DC. DB is 1 centimeter upon DC, 1 centimeter plus 2 centimeter, 3 centimeter. Answer is less than 1. Elasticity is less than 1. So at point D, elasticity is less than 1. ठीक है? Then I want to find out elasticity at a point E. मैं यहां पे लिखता हूं E is midpoint of AC. That is AC is a 2 centimeter. AC 2 centimeter है, उसका midpoint मतलब 1 centimeter पे each. That is EA is equal to EC is equal to 1 centimeter each. तो अब क्या हो गया, ध्यान देना. Now this is 1 centimeter. This is 1 centimeter. This is 1 centimeter. So point E on the demand curve BC 4 centimeter की demand curve है, उसमें point E has divided demand curve into two segments. Lower segment, मुझे point E पे elasticity ढूंढनी है. Lower segment क्या रहेगा? Lower segment रहेगा EB. What is upper segment? This is upper segment EC.
3 centimeter divided by 1 centimeter greater than 1. At this point elasticity is greater than 1. So क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, कोई भी कर्व उठाओ, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर होनी चाहिए. आपको इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ढूंढनी है, तो पहले इस डिमांड कर को एक्सटेंड करो, राइट, सो दैट इट विल मीट बोथ द एक्सिस, इट विल मीट बोथ द एक्सिस. ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ढूंढनी है, द पॉइंट हैज डिवाइडेड डिमांड कर इनटू टू सेगमेंट. दिस इज लोअर सेगमेंट, दिस इज अपर सेगमेंट. Suppose lower segment is 4 centimeter, upper segment is example 2 centimeter. So your answer is 4 centimeter divided by 2 centimeter. Answer is 2, greater than 1, relatively elastic. At this point elasticity is greater than 1. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, आपको ये दिस इज योर डिमांड कर्व and you have to find out elasticity at this point. तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, extend the demand curve so that it will meet both the axes. Extend the demand curve so that it will meet the both the axes. Then हमें जिस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ढूंढनी है, वो डिमांड कर्व को दो सेगमेंट में डिवाइड करेगा, लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट. सपोज लोअर सेगमेंट इज 1 centimeter, upper segment is 5 centimeter. So your answer is lower segment upon upper segment less than 1. Answer is less than 1, right? Relatively inelastic. तो यहाँ पे आंसर रहेगा relatively inelastic. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके L upon U, L upon U, you can find out the answer. अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से करता हूं, अगर अभी आपको समझ में आए तो ध्यान देना. This is my downward sloping demand curve. This is my downward sloping demand curve. This is the midpoint of the demand curve. ठीक है, this is midpoint of the demand curve. This is one point, this is another point. मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लेता हूं, instead of taking point here, मैं कैसे करता हूं, this is point A, this is point B, this is point C. At point A, ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट ए पे क्या रहेगा, इस पॉइंट पे क्या रहेगा, लोअर सेगमेंट 0 है, पॉइंट बी के नीचे कुछ भी नहीं रहा. आप बोलोगे सर ये नीचे जा रही करो, नीचे तक नहीं देखना, हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन तक देखना है. ठीक है, लोअर सेगमेंट 0, L अपॉन एवरीथिंग 4, आंसर इज 0. So यहाँ पे इलास्टिसिटी इज 0. इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इस पॉइंट पे L इज 4 सेंटीमीटर, L इज लोअर सेगमेंट इज 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट इज 0. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, आंसर इज इनफाइनाइट. अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट A, इलास्टिसिटी इज 0. Why? Because lower segment is 0. Lower segment है ही नहीं. AC is a demand curve. AC is a demand curve. मैं A point पे elasticity ढूंढ रहा हूँ. A point पे try to understand. Lower segment है ही नहीं. Lower segment 0 है. Lower segment है ही नहीं. तो L is 0 divided by 4 centimeter. 0 divided by 4 is 0 only. At midpoint, elasticity is 1. Because lower segment is exactly equal to upper segment, same amount divided by same amount is 1. At this point, lower segment is everything, upper segment is 0. So everything upon 0 is infinite. At this point, elasticity is infinite. During this, any point below midpoint, if you try to find out elasticity at any point below midpoint, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, any point below the midpoint, the elasticity will be less than 1.
कोई भी पॉइंट उठाओ मिड पॉइंट के नीचे, बिकॉज लोअर सेगमेंट विल बी लेस देन अपर सेगमेंट। मिड पॉइंट के नीचे कोई भी पॉइंट उठाओ, लोअर सेगमेंट की लेंथ विल बी लेस देन अपर सेगमेंट की लेंथ, आंसर विल बी लेस देन 1। एंड एनी पॉइंट अबोव द मिड पॉइंट, elasticity will be greater than 1 because lower segment will be greater than upper segment। वहां पे कोई भी पॉइंट उठाओ, lower segment will be greater than upper segment, answer will be more than 1, right? Because lower segment is less than upper segment, यहाँ पे lower segment is equal to upper segment, यहाँ पे lower segment is greater than upper segment, यहाँ पे lower segment is 0, यहाँ पे upper segment is 0। Reasons. So as, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, as we move upward on a given demand curve, A से B, B से C जा रहे हो, the elasticity increase हो रही है 0 से less than 1, 1 greater than 1, infinite। As you move upward on a straight line demand curve, elasticity increases। As you move downward, अगर आप नीचे आते हो on a demand curve, elasticity infinite, greater than 1, is equal to 1, less than 1 and 0 decrease होती है। At midpoint, elasticity is 1। जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है डिमांड कर्व, वहां पे इलास्टिसिटी 0 होती है। जहां पे y एक्सिस को डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करती है, वहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफिनाइट होती है। मिड पॉइंट के नीचे लोअर सेगमेंट इज लेस देन अपर सेगमेंट, एनी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट, लोअर सेगमेंट इज लेस देन अपर सेगमेंट, आंसर इज लेस देन 1। above the midpoint, lower segment is more than upper segment, answer is greater than 1, this is the answer। तो लिखो क्या क्या लिखा है उन्होंने, देखते हैं। राइट, Professor Alfred Marshall has developed another method to measure the elasticity, which is known as point method or geometric method। A ratio method and total outlay method are unable to measure elasticity of demand at a given point on a demand curve। ठीक है, at any point on the demand curve, elasticity of demand can be measured with the help of the following formula, L upon U। क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो गिवन पॉइंट, उस पॉइंट के नीचे का सेगमेंट डिवाइडेड बाय उस पॉइंट के ऊपर का सेगमेंट, अपर सेगमेंट ऑफ ए डिमांड कर्व अबव द गिवन पॉइंट, L अपॉन यू, लू याद रखना। ठीक है, डिमांड कर्व में भी इधर लीनियर और नॉन लीनियर, पहले हम लीनियर के लिए समझ रहे। ठीक है, क्या लिखा है देखो, व्हेन द डिमांड कर्व इज अ linear demand curve, downward sloping, that is straight line, we extend the demand curve to meet y axis at point A and x axis at a point B। ठीक है, A and B। आगे देखो, तो डिमांड कर्व को एक्सटेंड करो, ये पहले लिखने का। देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एट पॉइंट x is 0, at point x is 0। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट x axis, अच्छा हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एट x axis is 0, यहाँ पे it is 0 and y axis it is infinite। आगे, elasticity of the demand will be different at each point obviously। so उन्होंने assume करने को बोला है, उन्होंने वही एग्जांपल दिया है जो मैंने लिया है, राइट। यहाँ पे ग्रेट लेस देन 1 है बिलो द मिड पॉइंट, यहाँ पे इक्वल टू 1 है एट द मिड पॉइंट, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है अबव द मिड पॉइंट। ठीक है, तो उन्होंने वो एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, सो इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, बराबर। लेस देन 1 मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक, इक्वल टू 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 मतलब रिलेटिवली इलास्टिक। यहां पे परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है,
नाउ माय क्वेश्चन इज, मैं चेक करूंगा आपको एक्चुअल में समझा है नहीं समझा है, ध्यान देना। दिस इज माय डिमांड कर्व, ठीक है। ए बी सी डी, ध्यान देना मैं यहां पे लिख रहा हूं, ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। You have to tell me the point elasticity at point A, point B, point C, point D and point D. चलो करो everyone, करो जल्दी करो everyone। एंड टाइप द आंसर। ए पे कितना रहेगा, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ए पे कितना रहेगा, बी सी डी ई, 5 पॉइंट्स दे, सीक्वेंस में लिखना। जल्दी आंसर लिखते जाना है, कोमा देते चलो। ए ए ए बी सी डी मत लिखना, खाली वैल्यू लिखना, बीच में कोमा देना तो क्लिक हो जाएगा। ओके ओके विनया, ओके जल्दी करो। लास्ट 5 to 6 7 मिनट्स हो जाएगा अपना, आज मेथड्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके गुड। ओके देखो, at point A, answer is, what is the total length of this is 2 centimeter, this is 3 centimeter, this is 2 centimeter, this is 3 centimeter, बराबर। total length is 10 centimeter, total length of the right demand curve is 10 centimeter। तो अब पॉइंट ए पे ढूंढना है, L upon U, L is 10, U is 0, 10 upon 0 infinite, बराबर। then at point B, low upper segment is 2 centimeter, B is 2, मतलब नीचे वाला 8 रहेगा, 8 centimeter upon 2 centimeter, answer is 4, right। at point C, length of lower upon length of upper, 2 plus 3, 5 centimeter lower, 5 centimeter, obviously फिर 5 centimeter upper होना चाहिए, उतना तो common sense होना चाहिए, 1। at point D, length of the lower 3 centimeter, तो upper कितना रहेगा 7, दोनों को मिला के 10 centimeter होना चाहिए, less than 1, right। at point E, lower segment is 0, upper segment is right 10, answer is 0। चेक करो, ठीक है, ऐसे हमें ढूंढना है, ठीक है। अच्छा ये आ गया, अगर डिमांड कर लीनियर है तो ध्यान देना ये डायग्राम है, दिस इज मोर एप्रोप्रिएट डायग्राम।
अगर डिमांड कर्व लीनियर है किसी भी पॉइंट पे, तो सबसे पहले लिखने का एक्सटेंड द डिमांड कर्व सो दैट इट विल इंटरसेक्ट और मीट एक्स एक्सिस एज वेल वाई एक्सिस. देन a given point on the demand curve will divide the demand curve into two segments, like lower segment and upper segment. Then by using the formula length of lower segment upon length of upper segment we can get the elasticity. ऐसे लिखने का और फिर डायग्राम निकालने की. ठीक है. Always remember, राइट, जैसे ऊपर जाओगे तो डिमांड कर्व के ऊपर जाओगे तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व नहीं है, मतलब लीनियर है, तो क्या करते हो? अगर नॉन लीनियर है तो कुछ नहीं, वही है, ध्यान देना. नॉन लीनियर डिमांड कर्व, नॉन लीनियर डिमांड कर्व. If the demand curve is non-linear, this is your demand curve. If you try to extend it, दोनों एक्सिस को मीट होना इंपॉर्टेंट है. या तो एक्स एक्सिस पे मीट होगी तो वाई एक्सिस पे नहीं होगी, वाई एक्सिस को मीट करेगी तो एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगी. हमें दोनों को मीट करना है. इफ आई ट्राई टू एक्सटेंड द डिमांड कर्व, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप अगर देखते हो, अगर मैं इसको एक्सटेंड भी करने जाऊंगा तो एक्सटेंड होके वो, राइट, इट वोंट मीट द एक्स एक्सिस, सॉरी, इट वोंट मीट द वाई एक्सिस. अगर मैं इसको एक्सटेंड भी करता हूं तो मे बी it won't intersect the x-axis. There is a possibility. Then I cannot use the formula lower segment upon upper segment. इसलिए हमें क्या करना होता है, जिस पॉइंट पे हमें इलास्टिसिटी ढूंढनी है, हम उस, सपोज मुझे इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ढूंढनी है, then I will draw a tangent at that point. I don't know कैसे बनेगा. हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड फिर वो टेंजेंट हमें देगा लोअर सेगमेंट की लेंथ एंड अपर सेगमेंट की लेंथ. लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, दिस इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. यू विल गेट द आंसर. सो जब नॉन लीनियर कर्व रहेगी, जिस पॉइंट पे हमें इलास्टिसिटी ढूंढनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है सो दैट इट विल मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड देन below that point lower segment, above that point upper segment, then apply the formula lower upon upper. तो देखो मॉड्यूल में कैसे लिखा है. क्या लिखा है देखो. For non-linear demand curve, when demand curve is a non-linear, convex to the origin, convex to the origin, ऐसे origin ऐसे, convex to the origin, ठीक है, convex to the origin. To measure the price elasticity of a demand, we have to draw a tangent AB touching the given point on demand curve and extending it to meet y-axis and x-axis. तो हमें E पॉइंट पे इलास्टिसिटी चाहिए. अगर आप ट्राई भी करते हो, it won't meet y-axis, it won't meet the x-axis. हमने क्या बोला था, डिमांड कर्व को एक्सटेंड करो सो दैट इट विल मीट x-axis and y-axis. अब ये पॉसिबल नहीं है, हमें E पॉइंट पे इलास्टिसिटी चाहिए. तो दे हैव ड्रॉन ए टेंजेंट, उन्होंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया विच विल मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एंड फिर उन्होंने क्या किया, दे टुक द लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट EB एंड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट EA, EB अपॉन EA. If length of lower segment is greater than upper segment, answer will be greater than 1. If length of lower segment is less than upper segment, answer will be less than 1. अगर lower segment ज्यादा रहेगा upper segment से, अगर numerator is greater than denominator, तो answer will be more than 1. अगर numerator is less than denominator, answer will be less. अगर दोनों equal रहेंगे, length of lower segment and length of upper segment is equal, answer will be 1. ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उन्होंने वही लिखा है, if EB, that is lower segment, is equal to upper segment EA, answer will be 1. If lower segment is greater than upper segment, numerator is greater than denominator, answer is 1, greater than 1. If EB, lower segment, is less than upper segment, below the midpoint, relatively inelastic.
ठीक है, सो लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। सो अगर ऐसे है तो कैसे करोगे, ध्यान देना। वी हैव टू फाइंड द इलास्टिसिटी एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस इज द टेंजेंट। अब समझ लेना, आपको एग्जाम में एग्जैक्ट टेंजेंट नहीं ड्रॉ करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, बस ध्यान देना, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ई on a given demand curve DD. So if EB is equal to EA, numerator is equal to denominator, answer is equal to 1, relatively elastic, sorry, unitary elastic. If lower segment is less than upper segment, numerator is less than denominator, answer will be less than 1, बराबर, relatively elastic, relatively inelastic. This is below the midpoint, below midpoint, below midpoint of tangent, midpoint of tangent, जो टेंजेंट ड्रॉ की उसके मिड पॉइंट के नीचे। एंड देयरफॉर इफ EB is greater than, EB is greater than EA, when numerator is greater than denominator, answer is greater than 1, relatively elastic. Above the midpoint of tangent. The given point is above the midpoint of the tangent. बस इतना लिखना है, ठीक है। सो तीन मेथड्स, एक मेथड है कौन सी, रेशियो मेथड, दूसरी मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, एंड तीसरी मेथड है पॉइंट मेथड। तीसरी मेथड है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में दो, फॉर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड फॉर राइट लीनियर डिमांड कर्व एंड नॉन लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। सो आज यहां पे रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा एंड हम पूरा माइक्रो हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा पूरा माइक्रो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड यू हैव टू राइट ए टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स राइट देयर आफ्टर। सो इस वीक में आई वोंट वेट टिल द सैटरडे, संडे सैटरडे, मैं उसके पहले एक लेक्चर लेके, मुझे एक लेक्चर चाहिए, खत्म कर दूंगा, एंड देन आई विल कीप ए टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स ऑन एंटायर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपके अच्छे से पूरे सिलेबस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। सो ये करना इंपॉर्टेंट है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो जहां पे टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है, डोंट फॉलो द रॉन्ग डेफिनेशंस, गो फॉर द करेक्ट डेफिनेशन। अगर किसी के पास ओल्ड सिलेबस का बुक है, चाहे तो चेक करो, उसमें जो मैंने डेफिनेशन दी वही डेफिनेशन आपको मिलेगी, ठीक है। दैट डेफिनेशन इज रॉन्ग ओवर दियर। आप कहां पे भी गूगल पे कहां पे भी सर्च करो, यू विल फाइंड जो मैंने डेफिनेशन दी वही करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडे सेशन। पकड़ के चलो, नेक्स्ट संडे को यू हैव टू राइट द टेस्ट, ठीक है। थैंक यू।